which are very inspiring actually. And I picked up some of the practical application part, how we can learn for our day-to-day life from Hanumanji. And we get inspired by the people around us. Basically when we come to the temple, we come to take darshan, but that is one aspect of it. Another aspect is that we have to get inspired. Is that right? Our life without inspiration is a dull life, right? So we want to get inspired by the life of Hanumanji, and we will learn some lessons from Hanumanji. Before we do that, we'll do one invocation prayer, take the blessings of Guru Parampara. So the prayers are on the screen. You can fold your hands and recite together with me. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare Hare. Thank you, everyone. We'll pay respect to Shri Shri Sitaram Lakshmana Hanumanji. Prayers are on the screen. We all will recite together. Lokabhiramam Ranarangadhiram Rajivanetram Raghuvanshanatham Karunyarupam Karunakarantam Shri Ramachandram Sharanam Prapadye. Siya Rama मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी युग पानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं. Everybody. Manojam Marutatulyavegam Jitendriyam Buddhi Matavarishta Vatatmajam Vanarayuthamukhyam Shri Ramadutam Sharanam Prapadye. बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So, as I said that we will all will learn something from Hanumanji. We'll try to inspire ourselves. When we leave this place, we should have some aspects of Hanumanji with us. We want to have Hanumanji's blessing in forms of his. Hanumanji is a very beloved devotee, very dear devotee of Lord Sri Ramachandra. And Hanumanji could do anything and everything to please his Lord Ramji. When you love someone, what does you love means? Love means that you are willing to give up your life for that person. That is love. Is that right? It's, I say that I love you, but I cannot do anything for you. But is that meaning of love? No. When you love someone means that you are willing to give up everything. Like a mother loves to a child. Why does mother love the child? Does she want any money from the child? No. She doesn't want anything. But still mother, Hare Krishna. Mother is awake late in the night. She is serving the child. She cleans the diapers, everything for the baby. Hare Krishna, welcome. Please have a seat. What is the meaning of the love? Love means to do anything. So mother will do anything to protect the child. Similarly, Hanumanji had love for Lord Sri Ram. So he would do anything for Lord Ram. One time, Hanumanji saw Mother Sita putting sindur. You know sindur? They put the sindur in India. Hare Krishna, Risha, please come have a seat. So one time Hanumanji saw Mother Sita putting sindur in her head. So Hanumanji asked Mother Sita that why are you putting sindur? So then Sita Mata said that one thing is that when I put the sindur, it increases the life of Lord Shri Ram. राम जी का जीवन बढ़ता है इसलिए मैं रोज सिंदूर लगाती हूँ और दूसरा जब मैं सिंदूर लगाती हूँ तो राम जी को बहुत अच्छा लगता है राम जी likes seeing me putting sindur in my head. So as soon as Hanuman ji heard that, what did Hanuman ji do? Hanuman ji went to the marketplace and he bought one full bag of sindur and he put the sindur all over his body and he was very happy putting the sindur. You know how Hanumanji looks when he's putting the sindur on his body? Like this. You see this? Have you seen the Hanumanji with pura sindur covered? So Hanumanji put the sindur, he became like a complete red. And then he went to Sri Ramji. And then Ramji started laughing at Hanumanji. Hanuman, what have you done to yourself? इतना सिंदूर लगा के क्यों आए हो? तो हनुमान जी कहते हैं कि मदर सीता ने बताया है कि आपको सिंदूर बहुत अच्छा लगता है और सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ जाती है तो मैंने सोचा मैं और लगाऊं तो आपकी आयु और बढ़ जाए और जब इतना सा लगा से आप इतना खुश होते हैं तो मैं और लगा दूंगा. तो हनुमान जी was such a beloved devotee of Lord Ram that he could do. सिंदूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्मिलॉन या ऐसा कुछ कहते हैं वर्मिलियन. राइट राइट. So Hanumanji saw Mother Sita putting the sindoor, so Hanumanji started putting the sindoor on his body. So it is said, Jai Hanuman, Jnana Guna Sagar, Jai Kapishati Hu Lok Ujagar. So Hanumanji is the source of Jnana and Guna. He is the Sagar. Sagar means ocean. Ocean means there is unlimited water. Similarly, Hanumanji has unlimited Jnana and unlimited Guna. Sometimes people have a lot of knowledge, but then their character is a little bit there.
a little bit not so friendly, arrogant, egoistic like that. Right? But Hanumanji has a gnana and guna also. And Jai Kapishatihu Loka Ujagar means that the glory is known in everywhere. Hanumanji's temple, actually in African countries also there is Hanuman temple. Have you heard that? There's a very big deity of Hanumanji in African country also. Hanumanji is known all over the world. Hanumanji and Ganeshji, they are famous everywhere. Even Barack Obama used to carry Hanumanji's thing in his pocket. Have you heard about that? So he was devotee of Hanumanji. He knew Hanumanji very well. Huh? And then Hanumanji is called as Ramaduta Atulita Baladhama Anjani Putra Pavanasuta Nama. So Hanumanji, whenever somebody asks him, Hare Krishna, whenever somebody asks Hanumanji, who are you? He said, I am Ramaduta. When रावण की लंका में जब भगवान हनुमान जी गए और रावण ने उनको पकड़ के सभा में बुलाया तो होगा कि आपका नाम क्या है तो कहते मेरा नाम है रामदूत वो कभी अपने को अपने नाम से बुलाते नहीं थे मैं मारुति केसरी नंदन कुछ भी नहीं हमेशा क्या कहते थे रामदूत तो हम सब दूत ही है भगवान के वी आर ऑल दास सर्वेंट्स यू नो सो रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र अंजनी भगवान के हनुमान जी के माता का नाम है पवन सुत नाम तो ऐसे हमारे हनुमान जी के बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं हनुमान जी की एक सुंदर कथा है और जब सीता माता को खोजने के लिए निकलना था तब अनेक टीम बनाई गई थी है ना सबको एक दिशा में भेजा था किसी को नॉर्थ में किसी को ईस्ट में किसी को साउथ में किसी को वेस्ट में ऐसा भेज दिया था सो हनुमान जी की टीम में कौन कौन था कौन कौन बताएगा हनुमान जी की टीम में कौन था अंगद थे दूसरे जामवान प्रभु जी नल नील और सुग्रीव तो वहां पे दूर था सुग्रीव राजा था वो सबको मॉनिटर कर रहा था हाँ फिर बाली की वाइफ तारा नल नील तारा जामवान ये सब अंगद ये सब हनुमान जी की टीम में थे और हनुमान जी को कौन सी दिशा में भेजा गया था हाँ साउथ में दक्षिण दिशा में और जब हनुमान जी को दक्षिण दिशा में भेजा गया था तब सब लोग सब बंदर everybody was searching for mother Sita for months together actually and then after searching mother Sita for months they were really thirsty hungry और रास्ते में कोई पानी की जगह नहीं दिख रही थी कुछ नहीं दिख रहा था so then they were really disappointed discouraged and they wanted to drink and eat something so at that time Hanumanji saw that there was a mountain and from the mountain couple of birds were coming out so Hanumanji was very intelligent so he said as the birds are coming out from that mountain side there has to be a water because birds will go where there is water so they all started chasing that particular mountain and they went to the mountain they found a big cave and then Hanumanji entered in the cave first and then all the monkeys entered after the Hanumanji entered into the cave and as they entered into the cave what did they find inside there were lots of fruits very delicious food there for monkeys and there was a pond of water and at the same time they saw a lady beautiful apsara doing tapasya so as soon as they entered the cave here is the cave I have some pictures for you Hanumanji scene can you see the Advi can you see that what are you seeing here Hanumanji seeing the birds flying from the cave so he notices that and everybody enters into the cave and they see a apsara doing a tapasya so the name of the apsara was Swayam Prabha and Swayam Prabha was doing tapasya inside so as soon as Hanumanji and all the monkeys came inside the cave Swayam Prabha welcomed everybody and said you all are most welcome she gave them all the fruits water and all the monkeys were really tired because they were searching for mother Sita for so many months
And now they didn't find Mother Sita, so they were discouraged also. So at that time, Tara proposed to Hanumanji and Angad that we are searching for Mother Sita for so many days. We haven't found Mother Sita. Now, if we go like this empty-handed, then Sugriv will not spare us. And this place, we are here in the cave, and there are lots of nice vegetables here, water. Why should we go back? Let's stay here. यहाँ पे ही ऐश करते हैं. अंगद भी मारेगा, कोई सुग्रीव भी कुछ तकलीफ नहीं करेगा. We'll stay here, everybody. So all the monkeys, including Angad, agreed. What did they agree? Stay here and abandon the search for Mother Sita. So they all decided, and at that time Hanumanji got up. Hanumanji said that you are on the mission of Lord Sri Ram, and you are thinking about the sense enjoyment. So you forgot your mission. So Hanumanji said that if we do that, then Lakshmanji will come searching for us, and he will not spare any of us. फिर कुछ कहना मत मुझे कि लक्ष्मण जी ने क्यों शिक्षा दिया. So all of you must come to your senses, and all of us must continue our search for Mother Sita rather than enjoying here. So what is Hanumanji giving us a lesson here? First lesson, Hanumanji is saying that never forget your mission. There is, everybody of us have a mission in our life, right? And then we forget the mission. We all are here, some of you are here as a students for study, right? That is your mission, right? You are here for study. Then some of you are here to better life, to make something for your family, friends. Everybody has a mission in the life. But what happens in the mission? We forget the mission somehow or other. Like students, they are on the cell phone. Sometimes they have homework on the cell phone also. Nowadays, everything is virtual, so lots of things are on the cell phone. And then while on the cell phone, then something pop-up comes, or you are doing some homework on your computer and some pop-up comes. That is called as distraction. So whenever there is a distraction, then you cannot complete your mission. So Hanumanji is saying that one should get out of this distracting things. So as soon as all the monkeys entered in the cave, what was the distraction? The comfort zone there. What was the comfort? Food was there, water was there, aram. Chalo sote raho, maja karo idhar. They say that if you really want Ram, then you have to avoid आराम. अगर राम को पाना है तो क्या छोड़ना पड़ेगा? आराम. हाँ, सोते रहेंगे तो राम मिलने वाले नहीं है. You have to get out of the comfort zone. So what is the comfort zone nowadays for all of us? Browsing on the internet for hours together. Is that right? It's a very comfort zone. If you are on the computer, some people are addicted to cell phones so much that they spend like 4 or 5 hours a day on the cell phone. Anybody? They're watching the videos on the Facebook forever. Some people are addicted. Anybody addicted to Facebook videos? Be honest. If you say yes, then I'll give you a prize. Most of us, we watch quite a few videos, Facebook, WhatsApp. This is a comfort zone because we forget all the stress, right? When you are watching the video, what happens? You forget everything else. But that is just like being in the comfort zone. But if you really want to be successful in your life, what you have to do? You have to get out of the comfort zone, right? Everybody nowadays, you can see, addiction of the cell phone. Addiction of the cell phone is just like if you have a broken glass, glass pieces. If you have glass pieces in your hand and you do like this, what will happen? You will bleed, right? There will be a lot of injury to the hand. So is there any point in playing with the glass pieces? No, you have to be very, very careful with the broken glass piece. Otherwise it will hurt you. Similarly is this cell phones. We don't know that you will get hurt. Have you ever seen a deer drinking water? हरिण को पानी पीते हुए देखा है? How does a deer drink water?
When deer is drinking the water, it is constantly watching here and there, making sure that the other animals do not attack. So what does deer do? A deer will drink the water and immediately run away from that place. He will not stay there for longer because there might be a tiger or a lion waiting for deer. Because most of the time, all the dangerous animals like tiger, lion, they wait around the drinking ponds because they know that all the animals are going to come there. So deer is very careful of his life, its life. So as soon as he's or deer will see that a lion or tiger, it will run away. So the deer will drink water for how many seconds? A few seconds, not more than that. Similarly, in our life also, like cell phones, you might be there for some time, but you can be there forever actually. Some people they lose 3-4 hours a day. Can you imagine 4 hours a day on the cell phone? That is just like losing almost one third of your life. Because 8 10 hours you are sleeping, right? 8 to 10 hours some people sleep. And then 4 hours you spend on cell phone. Then what happens? You hardly any hours left in your life, right? So we have to be very careful. So Hanumanji is telling us that we have to get out of our comfort zone. So Hanumanji told everybody that even though we are safe in this cave, but what is our mission? Our mission is to search for Sita. We don't want to waste our time on the cell phones because we are here for something else. Is that right? So Hanumanji is giving us a very important message. So then Hanumanji motivated everybody and all of them got out of the cave because they agreed that if we don't find Mother Sita, then Lakshmanji will come and he's not going to spare any of us, right? So then Hanumanji inspired everyone and he said that we should never forget our mission. So what is our mission in the life? What is your mission in the life? What is your mission? Study. So that is for how many years? 5 years, 10 years, 2 years. Then after that, what is the mission? No mission. How about you? What is your mission in your life, Prabhuji? Currently it's for studies, and after that for getting settled down. And then after settling down, what is the mission? Produce some children. Then after that, what is the mission? After producing some children, get them married. Then what is the mission? Like so, some of you have reached that stage, right? Producing the children, all those things are there. But what is the ultimate mission of your life? What do you want to do after say 50 years? Where do you want to see yourself? You want to see you want to be a millionaire or owner of a big mansion, or what is like ultimate mission? These are short-term visions, right? 2 years, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. What is your vision after 50 years, for example? Or when you become very old, you're about to die, what is your mission, ultimate mission? Risha? Very nice. Big round of applause to Risha. That is correct actually. Our mission of the life is to serve God actually. We are here for service. We are not here for enjoyment actually. We are all servants. Hanumanji never believed in enjoyment. Hanumanji always believed in service. Ram kaj karibe ko atur. What is that? Ram kaj karibe ko atur means, what does that mean? Always eager to serve Lord Shri Ram. Is that right? He never said that मेरा काज करने को आतुर. किसका काम करने को आतुर? राम का काज है ना. ऐसा नहीं कि हम everybody is behind themselves, but Hanumanji is for serving Krishna. So the purpose of our life is to serve Krishna, to serve Lord Shri Rama. And how can we serve Lord Krishna or Rama? How do we serve them? By constantly remembering them. So as a student, say you are studying, while study also you can remember Krishna. As a householder, you are looking after the family. While looking after the family, you remember Krishna. That is how everybody, like Arjuna served Krishna, how? How did Arjuna serve Krishna? By fighting the war. Krishna said that Arjuna, if you fight this war for me, I'll be very happy. So what did Arjuna do? Arjuna fought the war for Krishna. So everything, anything we do, we can do it. That is the ultimate mission of the life.
So everybody of us should get out of the cave. Who said that to? Hanumanji said that to Jamvan, Angad, Nala, Neela, Tara, all of them. Hanumanji said, everybody must get out of this cave. But at that time, they were told by Satyaprabha that if you want to get out of the cave, then you have to do tapasya. Without tapasya, you cannot get out of the cave. So then she chanted the mantra. And as soon as she chanted the mantra, the cave would open up and they all get out of the cave. So then all of them came out of the cave and they started going to the south. More south they went. What happened? They reached to the end of the South Hills, Kanyakumari area. Huh? There they saw a ocean, actually, nothing else. So as soon as there was a big ocean, what happened? Angad, who was the leader of the team, he became very disappointed. So Angad was disappointed at the ocean side and he sat down. He said, अभी इसके आगे तो जाके क्या फायदा? अभी तो समुद्र आ गया है, कुछ नहीं हो सकता. Angad was the leader of the team. हनुमान जी के टीम के लीडर अंगद थे और लीडर ही क्या हो गया? डिसअपॉइंट हो गया. लीडर ने बोला कि अभी कुछ नहीं हो सकता, इसके आगे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है. सो ही वाज डिस्करेज्ड. So, as soon as the Angad was discouraged, all the soldiers also, all the monkeys also got discouraged. But then Hanumanji is always eager to serve Lord Ram. He never get discouraged. So Hanumanji said that Angad, you are our leader. If you get discouraged, then everybody will get discouraged. So a leader's role is you should never get discouraged. So Hanumanji, what did he say? He said that we all should take the opinion of other team members. You should not sit like this and lament. So Hanumanji asked Angad that Angad, as a leader, you take the opinion of everybody. What should we do the next? So then Angad said, okay, let's ask the opinion of everyone. So then Jamvan, who was the most senior among them, so he said to Jamvan that Jamvanji, can you please tell us that what should we do? So Jamvan said, you know what? Let's ask everybody around us. Because monkeys are known to jump, right? So how many miles you can jump? So some monkeys just said I can jump 5 miles, some said 10 miles, some said 15 miles. But he said, no, this ocean is very big, like more than 100 miles. So who is going to jump? So then Jamban said that I can jump, but I'm pretty old. Because if I jump, I may not be able to come back. Coming back is very important, right? But then at the same time, Jamban said that there is somebody among us who has this power, who can jump. And everybody was wondering whose name Jamban is going to tell. And at that time, Jamban proposed the name of Hanumanji. He said, this Hanuman, he has so much power, but he has forgotten all the powers. But today we are going to remind him all his powers. And because, you know, if you remember the childhood story of Hanumanji, that when Hanumanji was jumping towards the sun, uh, at that time, Indra hit hit Hanumanji with his vajra, and Hanumanji fell down. And then Hanumanji had this power even to jump to the sun, even as a little baby. So then he was given a blessing by the Devi Devata that he will retain this power of jumping across any distance, but he will forget about it for a while, and then whenever he is reminded of his power, he will get the strength back. Oh, that was a blessing to Hanumanji. So Jamvan reminded Hanumanji that Hanumanji, you are very young, I am very old. I cannot cross over. And even if I cross over, I may not be able to come back. But you are young, you have a strength, so you should go and jump over. So, what was the lesson here we learned from?
that as the Angad was a leader and he got disappointed. So a leader should never get discouraged. Like Hanumanji was a real leader actually. Uh, So Hanumanji suggested Angad that we should take opinion of Jamval. Uh, So what is the message Hanumanji is giving us? Hanumanji is saying that in our life also we should take opinion of people who are senior to us, senior Vaishnavas, senior devotees. Jamban was very senior. Nowadays, we don't believe in asking others. We think that Google has all the answers, right? When was the last time you call your father and you say, "Can I do this? Can I not do this?" We don't even worry about it, right? We don't even care for them. We do it and then we tell them, "I have done this." मेरी से शादी हो गई है, बस आप आशीर्वाद दे दीजिएगा। कभी कभी तो वो भी नहीं बताते हैं, बच्चा होने के बाद मालूम पड़ता है कि शादी होगी। So we should always consult people senior than us. Hanuman ji asked Angad that, can you please talk to Jamban? Because he is very senior. You are taking all the decisions. Even though you are a leader, you should take opinion of others. That is what we learn from Hanumanji's pastime. And never get discouraged in your life. Hanumanji was never discouraged, right? And Hanumanji is telling us that give up hopelessness, never get discouraged, and be confident and take opinion of seniors. So then Jambanji, when reminded Hanumanji, then as Jamban was reminding Hanumanji, Hanumanji was becoming big and big. You know. So Hanumanji was like this, and as more and more glorification of Hanumanji was done by Jamban, Hanumanji's height was increasing more and more and more and more. So Hanumanji has immense strength. He is Ashta Siddhi Navanidhi ke Data, which means Hanumanji can become smaller than the smallest and bigger than the biggest. So as soon as glorification of Hanumanji was done, Hanumanji became very big, humongous big. Uh, so what do we learn from this pastime? That Jamban actually encouraged Hanumanji. So we should encourage the people who are junior to us. And we should never discourage others. What happens when you encourage others? Their confidence goes up and up and up and up. So Hanumanji's confidence was increasing. That is called as empowerment by encouragement. Right? So Hanumanji empowered, Jamban empowered Hanumanji, and it increased the confidence. Sometimes what happens is that instead of increasing the confidence among the juniors, we try to find fault among the juniors. We say तेरे में ये कमी है, ये नहीं आता है तुझे, वो नहीं आता है. You all make the mistakes, right? But we have to encourage others rather than discouraging. So Jamvan encouraged Hanumanji. Srila Prabhupada ji when came to America, here is a big portrait of Srila Prabhupada ji. Shri Gandhitai, Shri Sitaram, Lakshman Hanuman, Shri Sitaram, Lakshman, Shri Radha, Shri Jagannath, Baldev Subhadra ki jai. Shri Jagannath, Baldev Subhadra ki jai. Shri Giriraj, Dhara ki jai. Shri Prabhupada. So when when Srila Prabhupada ji came to America, so Prabhupada ji encouraged all the young Americans, those Americans who did not know anything about Lord Krishna. Srila Prabhupada gave them a responsibility of printing books, distributing the books, building the temples. You know, the Americans who did not know even Bhagavad Gita, but with the Prabhupada trust, they went to Europe, they went to America, they went to UK, Russia, and they built the temples for Srila Prabhupada. Because what did Prabhupada do? Prabhupada encouraged them. तो हमारे से जो जूनियर है उनको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए, है ना, नहीं कि उसको नीचे दबा दें, है ना. जो हमारे से छोटे भाई बहन रहते हैं, हमारे से छोटे, अब यही काम करते हैं, कोई जूनियर आता है तो हम क्या करते हैं, उसकी तरफ उसको सिखाना चाहिए. वी शुड नॉट बी
फाइंडिंग द फॉल्ट्स एंड अदर्स। सो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, तो सॉरी इंडिया, अमेरिका से सब उनके फॉलोअर्स को लेके प्रभुपाद जी इंडिया गए और सबको उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे भगवान का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करिए। तो हरे कृष्ण फेस्टिवल वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते थे बॉम्बे में, आज़ाद मैदान में। और वहाँ पे लाखों लाखों लोगों को बुलाते थे, अमेरिकन लोग इंडियंस को बुलाते थे। किसके लिए? कृष्ण का नाम करने के लिए। अभी कृष्ण का नाम तो इंडिया से ही है, लेकिन अमेरिकन लोग इंडिया में आके भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जब अमेरिकन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जब इंडियंस देख रहे थे, तो लोगों को और भी उत्साह लगता था कि अरे अमेरिकन्स कर रहे हैं हमारे भारत में आके भगवद गीता, तो हमें भी करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी उनको व्हाइट एलिफेंट्स बोलते थे। व्हाइट एलिफेंट्स यानी कि हमारे भारत में कैसा है कि कोई सफ़ेद चमड़ी वाला कुछ बोलेगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है ना, है ना? उसको 50,000 रुपये सुनने को जाएंगे, और वही बात कोई भगवद गीता के द्वारा सुनाएगा तो कोई सुनेगा नहीं। तो प्रभुपाद जी took all these Americans from America to India to distribute Bhagavad Gita, to build the temples. And everybody got attracted to Krishna. Otherwise, nobody was listening to Prabhupada. प्रभुपाद जी कहते थे आप भगवद गीता पढ़ो, कोई सुनता नहीं था। लेकिन जब अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, सब सुनने लगे। तो प्रभुपाद जी उनको व्हाइट एलिफेंट्स बताते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने इनको एनकरेज किया। तो आज की तारीख में भी कितने सारे अमेरिकन्स थे जो अभी भी हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जिन्होंने ड्रग्स छोड़ दिया, अल्कोहल छोड़ दिया, मीट खाना छोड़ दिया और सब भगवान की तरफ लगे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको एनकरेज किया। ऐसा नहीं कहा कि आप लोग एकदम क्षुद्र हो, आप लोग मांस खाते हो तो आप लोग भगवान का नाम नहीं ले सकते। वैसे हमारे यहाँ पे ऐसी प्रथा है कि जो निचली जाति के हैं उनको घृणा करते हैं लोग, ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। हाँ। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं करा। प्रभुपाद जी ने क्या किया? सबको एनकरेज किया। सो व्हाट इज द लेसन? व्हाट इज द लेसन? वी शुड एनकरेज एवरीबडी अराउंड अस, राइट? So that is the encourage our junior team members. And then Hanumanji wanted to jump over the ocean to go to Lanka. So as soon as Hanumanji was about to jump over, what is the first thing Hanumanji did? Hanumanji started offering the prayers to Lord Shri Ram. अभी हनुमान जी को मालूम था कि उनके पास इतनी सारी शक्ति है कि वो जा सकते हैं। फिर भी हनुमान जी ने क्या किया? भगवान की प्रार्थना की, है ना? तो हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी शक्ति हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, कितनी भी एबिलिटीज हो, लेकिन पहले क्या करना चाहिए? पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो हनुमान जी ने भगवान के पहले आशीर्वाद लिए, फिर ही जंप किया। उसके पहले जंप, ऐसे तो जंप करके हनुमान जी पहुंच सकते थे, लेकिन इसको क्या कहते हैं? द पावर ऑफ ब्लेसिंग। अगर आपके पास कुछ शक्ति भी है, फिर भी भगवान के आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हनुमान जी हमें उनके चरित्र के द्वारा सिखाते हैं। सो टेक द ब्लेसिंग बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग। जैसे हम हमारा दिन स्टार्ट करते हैं सुबह, तो हम पहले भगवान को प्रणाम करके स्टार्ट करना चाहिए भगवान का। तो भगवान को स्नान करके भगवान को प्रणाम करना, भगवान के नाम का जप करना, फिर ही पूरा दिन चालू करना चाहिए। और फिर हनुमान जी जंप करके he started crossing over the ocean. Hanuman ji had a power that he could immediately jump over without any interval. But then, as all of you know, that Hanuman ji, when he jumped over, he was flying as if हनुमान जी वो ऐसे जा रहे थे जैसे भगवान राम का कोई बाण निकल गया हो, इतनी शूट एकदम फास्ट जा रहे थे। तो रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी की जो गति थी वो राम बाण की जैसी गति थी। इतने स्पीड से जा रहे थे, ऐसा स्लोली नहीं, आराम से हलते डुलते जा रहे, ऐसा नहीं, एकदम फास्ट जा रहे थे। क्यों? राम काज करीबे को आतुर। हाँ, भगवान का काम करना था, तो ऐसा स्लो स्लो करके नहीं चलेगा, एकदम स्पीड, फुल स्पीड में जा रहे थे हनुमान जी। तो वर्णन है कि भगवान के बाण के जैसा उनका स्पीड था। यानी हनुमान जी का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? एक बाण के साथ किया गया है, भगवान के शस्त्र के साथ।
तो हम सब भगवान के इंस्ट्रूमेंट, शस्त्र यानी एक इंस्ट्रूमेंट है ना? तो हम जैसे कि हनुमान जी भी भगवान के कार्य में एक इंस्ट्रूमेंट बने, ऐसे तो भगवान खुद जाके सीता माता को ला सकते थे। वैसे कोई बड़ा काम नहीं था भगवान के लिए। तो जब हनुमान जी कर सके तो राम भगवान क्यों नहीं कर सके, है ना? लेकिन हनुमान जी को क्या बनाया भगवान ने? इंस्ट्रूमेंट बनाया, निमित्त मात्र। हाँ, जैसे अर्जुन को भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ युद्ध में जितने भी लोग खड़े हैं, ये लोग कोई जीवित वापस नहीं जाने वाले। अगर आप नहीं मारेंगे तो मैं इनको खत्म करने वाला हूँ, लेकिन आप क्या बनिए? निमित्त मात्र बन जाइए। हाँ, इसलिए हनुमान जी को भी निमित्त बनाया गया। किसने? रामचंद्र जी ने। हाँ, देखिए, जब सब टीम जा रही थी माता को ढूंढने के लिए, तो अंगूठी किसको दी गई? हनुमान जी को दी गई। बाकी किसी को नहीं, बहुत सारी टीम निकली, लेकिन अंगूठी किसको दी गई? हनुमान जी को। क्यों? क्योंकि मालूम था कि यही ढूंढेंगे सीता माता को, इसलिए हनुमान जी को अंगूठी दी गई, है ना? तो हनुमान जी एक निमित्त बन गए भगवान को सेवा में। हम भी सब, वी ऑल आर इंस्ट्रूमेंट्स। भगवान की सेवा तो होने ही वाली है, अगर आप नहीं करेंगे तो और कोई करेगा। लेकिन क्या करें, हम शायद निमित्त मात्र बन जाए, वी बिकम अ पोस्टमैन। तो दैट इज द मैसेज वी गेट फ्रॉम हनुमान जी। तो जब हनुमान जी जंप करके जा रहे थे, तो पहले मैनक माउंटेन आया। मैनक माउंटेन ने बताया हनुमान जी को कि आप मेरे ऊपर आराम करिए। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान राम के काम में कोई आराम नहीं चलेगा। अगर आपको राम चाहिए तो क्या टालना पड़ेगा आपको? आराम। आराम छोड़ देंगे तो राम मिलेगा। अगर आप सोते रहेंगे तो भगवान मिलने वाले नहीं है। सुबह लोग जल्दी नहीं उठते आजकल। लोग उठते हैं 8 बजे, फिर जल्दी जल्दी उठ के फिर काम पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, लेट तक टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जल्दी लेट उठते हैं वापस। तो फिर भगवान मिलेंगे ऐसे? भगवान को मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सुबह जल्दी उठ के क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम का स्मरण करना पड़ेगा, है ना? देखिए, हमारा जीवन तो बहुत बिजी रहता है, लेकिन एक डिसिप्लिन जरूरी है जीवन में। इज दैट राइट और रॉन्ग? If you want to get success in your life, what do you need? Discipline. Discipline is very important. So, what time to go to sleep, what time to get up. When you get up late, then everything is late, late, late. Is that true? सबका अनुभव ये है। अगर आप लेट सोते हैं तो फिर लेट उठेंगे, लेट उठेंगे तो फिर काम पे लेट हो जाएगा, फिर पूरा दिन लेट, फिर रात को भी लेट, खाना भी लेट, सोना भी लेट, सब कुछ लेट। फिर सक्सेस कैसे मिलेगा? मिलेगा नहीं, मिलेगा, इम्पॉसिबल। भगवान को पाना है तो ठीक से सोना, खाना पीना, डिसिप्लिन चाहिए। फिर नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो ही भगवान मिलेंगे। नहीं तो ऐसे करेंगे कि जतो मत ततो मत, जो करना है वो करो, भगवान मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ी मिलते भगवान, है ना? भगवान के मिलने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। जैसे आप देख सकते हैं कितने सारे साधु महात्मा हो गए दुनिया में, तो सबने क्या किया? तपस्या की, तभी भगवान मिले ना। कोई बिना मेहनत किए डॉक्टर बन जाएगा? अगर सोचा कि सिर्फ मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले लिया, अभी पढ़ेंगे नहीं, एडमिशन मिल गया डॉक्टर हो गया, ऐसा होता है कभी? होता है? नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट? सिमिलरली, ऐसा नहीं कि आप हिंदू फैमिली में जन्म लिया, भारतवर्ष में जन्म लिया, कोई अच्छे कुल में जन्म लिया तो आपका सार्थक हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जन्म से कोई डॉक्टर बनता है? अगर आपने डॉक्टर किया, जन्म लिया, तो आप डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। वैसे ही आप कोई अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, फिर भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। इसलिए हनुमान जी को जब ऑफर किया गया कि आप आराम करिए मेरे ऊपर, मैंने माउंटेन ने कहा, तो बोले नहीं, भगवान के काम में उत्साह चाहिए, आराम का क्या काम है ना? जैसे प्रभुपाद जी थे हमारे, उनकी उम्र थी 68-69, और रात को सिर्फ 2 घंटा सोते थे। हाँ, और वो पूरी रात भर श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता का ट्रांसलेशन करते थे इंग्लिश में से, सॉरी, संस्कृत से इंग्लिश में, और पूरा दिन भर सब जगह प्रचार करते थे भगवत गीता, भागवतम, लोगों को मंदिर बनाना, लोगों को शिक्षा देना, ये उम्र में।
और जब 68-69 हो गया तो लोग तो रिटायर हो जाते हैं, चलो हम कैसीनो में जाएंगे, खेलेंगे पत्ते। फिर घूमने को जाएंगे, बच्चों को संभालेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने सब कुछ छोड़ के भारत से अमेरिका आए, और अमेरिका आके क्या किया? घूमने को नहीं आए अमेरिका, पैसे कमाने के लिए नहीं आए प्रभुपाद जी। ऐसा नहीं कि मैं न्यूयॉर्क जाके लिबर्टी टावर ऑफ क्या स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख लूँगा, ऐसा कुछ काम नहीं था उनका। उनका क्या ध्येय था? भगवद गीता का प्रचार करना। तो प्रभुपाद जी ने अगले 10 साल में 14 बार पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा की। कितने बार? 14 टाइम्स। 108 से ज़्यादा मंदिर बनाए, और 10,000 से ज़्यादा लोगों का जीवन में परिवर्तन लाके उनको प्योर वेजिटेरियन बना दिया। नो मीट ईटिंग, नो अल्कोहल, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट एक्टिविटीज, नो गैम्बलिंग। और भगवान की भगवद गीता करोड़ों की संख्या में लोगों के पास पहुंच गई। श्रीमद् भागवतम पहुंच गया। कभी पॉसिबल था? जब प्रभुपाद जी ने आराम छोड़ दिया। तो भगवान के कार्य में अगर आप लेजी रहेंगे तो भगवान मिलने वाले नहीं, कभी नहीं मिल सकते। देखिए, जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या से जा रहे थे वनवास में, तो सब अयोध्यावासी उनके पीछे निकले। हाँ, क्योंकि वो कहते कि हम भगवान के पीछे जाएंगे, हम अयोध्या में नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन जैसे ही पहला पड़ाव आया, सब अयोध्यावासी रात को सो गए। जैसे ही सो गए तो फिर रामचंद्र जी ने कहा ये अच्छा मौका है, सब सो रहे हैं, मैं निकल जाता हूँ। और सुबह जब अयोध्यावासी खड़े हो गए तो राम जी वन में चले गए थे। राम जी नहीं थे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर आप सोते रहेंगे तो राम जी मिलने वाले नहीं। इसलिए जल्दी उठना बहुत जरूरी है सुबह। हाँ, सुबह जल्दी उठ के भगवान के नाम का स्मरण करना। हाँ, देखिए, कम से कम 5:30-6 बजे तो उठ जाना चाहिए। हाँ, ऐसे तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त तो 4 से 6 के बीच में होता है, 4:30 से 6 के बीच में। लेकिन इतना भी जल्दी नहीं उठ के 5:30 बजे उठो, 6 बजे उठो। और हफ्ते में एक दिन सुबह मंगल आरती के लिए मंदिर में आना चाहिए। हाँ, सुबह 7 बजे मंगल आरती रहती है। अपने थंडर में 7 बजे रहती है। भारत में 4 बजे आरती होती है मंगल आरती, लेकिन 4 बजे तो मुश्किल है हमारे सबके लिए। तो 7 बजे हफ्ते में एक बार तो आप मंगल आरती में आ सकते हैं। नहीं आ सकते? कितने लोग आ सकते हैं हफ्ते में एक बार? प्रभु जी आ सकते हैं, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, बाकी के सब लोग आराम में हैं। आराम करेंगे तो भगवान मिलेंगे नहीं। हाँ, तो जो आराम करना चाहते हैं करें, ऐसा किसी का वी डोंट वांट टू टेक अवे देयर फ्रीडम। बट हफ्ते में या महीने में एक बार कौन कौन आ सकता है? महीने में, हफ्ते में एक बार इतने लोग हैं, महीने में एक बार कौन कौन आ सकता है? एक दो, यहाँ पे साल में एक बार, वो भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक बार तो थोड़ा हिम्मत करके जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। जल्दी उठ के वो कंबल में से बाहर निकलना, फिर स्नान करना, स्नान करके गाड़ी में बैठना, गाड़ी बैठ के मंदिर आना, मंदिर आए भगवान की आरती करना, और फिर जप करना भगवान के नाम का, भगवद गीता पढ़ना। एक्चुअली में सुबह एक अनुभव लेके देखिए, हैव एन एक्सपीरियंस, एटलीस्ट हैव अ स्पिरिचुअल मॉर्निंग। ऐसे तो रोज टीवी देखते हैं, व्हाट्सअप देखते हुए मॉर्निंग करते ही आप, है ना? लेकिन हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार भगवान के नाम के लिए, इज इट अ गुड आइडिया और इज इट अ बैड आइडिया? हाँ, एक सुबह भगवान के नाम, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। देखिए, करके देखिए, यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ चांस। देर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द लाइफ, बट लाइक जैसे कि हमारे कुछ मित्र हैं, वो नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए रात को जाते हैं, है ना? 2 बजे भी जाते हैं ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि देखने को चांस देना चाहिए ना। तो ऐसे ही एक बार सुबह भगवान का भी दर्शन करने के आ जाइए, नॉर्दर्न लाइट्स के लिए जाते हैं तो, है ना? तो सब लोगों को आना चाहिए, है ना? आना चाहिए कि नहीं? कितने लोग हाँ बोल रहे हैं आना चाहिए? आना चाहिए सब लोगों को। एक बार तो नॉर्दर्न लाइट छोड़ के भगवान के दर्शन करने को आ जाइए। हाँ, ठीक है। तो हनुमान जी के भक्त है तो प्रेरणा लेनी है भगवान से। हाँ, देखिए, आए दर्शन करिए, माथा टिकाए चले गए तो कुछ फायदा है? वो तो कहीं भी टिका सकते हैं, लेकिन प्रेरणा लेनी है। हनुमान जी की क्या प्रेरणा है? आराम करेंगे तो राम नहीं मिलेंगे। हाँ, इफ यू वांट राम गिव अप द आराम। हाँ, तो
डिसिप्लिन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू हैव अ डिसिप्लिन। फिर आगे हनुमान जी गए, तो हनुमान जी आगे गए तो कौन मिला? सुरसा मिल गई। सुरसा कहती है कि मैं आपको खा जाऊंगी। तो हनुमान जी कहे कि मैं जा रहा हूँ भगवान के काम के लिए, आप क्यों बीच में आ रहे हो, रोड़ा डाल रहे हो? एक काम करो, मैं सीता माता को ढूंढ के आता हूँ, बाद में मुझे खा जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि नहीं, मैं अभी खाऊंगी आपको। तो राम जी कहे, हनुमान जी कहे, चलो ठीक है, खाओ, जो भी करना है करो जल्दी। तो तो सुरसा ने मुंह खोला तो हनुमान जी उससे भी बड़े हो गए, क्योंकि ये तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो बहुत बड़े बड़े हो गए हनुमान जी। तो जैसे ही सुरसा ने बहुत बड़ा मुंह खोला, हनुमान जी छोटे होके बाहर आ गए। हनुमान जी ने सोचा कि इसके सामने छोटा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी किसी के सामने हम छोटा भी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? जैसे हमारे से कोई गलती हो जाए, किसी को हमने, जैसे अभी मैंने कुछ कहा आपको, और अगर कुछ किसी का मन दुख हो गया तो मैं कहता हूँ आई एम रियली सॉरी, हमने कुछ कह दिया, तो क्या कुछ हम छोटे हो गए, आप छोटे हो गए? कोई नहीं, सॉरी कहने में क्या प्रॉब्लम है ना? तो हनुमान जी ने कहा कि ये बहुत बहुत बड़ी हो रही है, मैं एकदम छोटा हो जाता हूँ। तो बहुत ही हम्बल हो गए हनुमान जी, एकदम छोटे होके मुंह में से जाके बाहर निकल आए। तो जैसे हनुमान जी बाहर आए तो सुरसा को कहा कि सुरसा, देखो आपका प्रॉमिस था कि जो भी यहाँ से जाता है आपके मुंह में से जाना पड़ेगा, तो मैं जाके आया, अभी मुझे छोड़ो यहाँ से। तो सुरसा भी खुश हो गई कि देखो ये इतने नम्र हो गए, मेरे सामने इतने छोटे हो गए। हनुमान जी चाहे तो सुरसा को मार भी सकते थे, लेकिन नहीं मारा उन्होंने। क्यों? क्यों फालतू का झगड़ा करना, चलो निकलो यहाँ से, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है झगड़ा करने में। कभी भी जीवन में है ना, कभी किसी से वाद विवाद हो जाए, किसी से कुछ आपका मन मिला ठीक नहीं हो जाए, तो झगड़ा वगड़ा करने में कोई पॉइंट, मैं तुझे देखूंगा तू मुझे देखेगा, बहुत टाइम बर्बाद होता है उसमें, है ना? छोड़ दो, माफ़ी लो, निकलो वहाँ से आगे, है ना? क्योंकि जीवन में क्या है कि बहुत काम है हमारे पास। ऐसे छोटे छोटे झगड़े में फंसे रहेंगे तो पूरा जीवन इसमें ही निकल जाएगा, है ना? तो हनुमान जी ने क्या सोचा, इससे झगड़ा करने में कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि मुझे झगड़ा किससे करना है? रावण से करना है, ये तो छोटी मोटी है, इससे क्या करें? तो आगे निकल गए। तो हनुमान जी जैसे ही आगे निकल गए, तो आगे निकली सिमिका। सिमिका क्या कर रही थी? हनुमान जी को नीचे खींच रही थी, क्योंकि उसके पास ऐसी शक्ति थी कि कोई, वो किसी को परछाई, उसका जो शैडो है उसको भी पकड़ के नीचे खींच ले। तो हनुमान जी ने कहा कि ये अभी मुझे नीचे खींच रही है, तो अभी क्या करें? ये सुनेगी नहीं। हाँ, तो उसका वहाँ पे वध कर दिया हनुमान जी ने। तो कभी किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहिए, किसी को नीचे नहीं खींचना चाहिए जीवन में। जब भी हम दूसरे के प्रति ईर्ष्या रहती है हमारे जीवन में, तो हम उसको नीचे खींचते हैं, है ना? उसको नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। तो ये सुरसा जो थी, सॉरी सिम्बिका जो थी, ये ईर्ष्या का प्रतीक है। हाँ, ईर्ष्या यानी तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा है तो मैं तुम्हारे से ईर्ष्या करूँगा, और तुम्हारा कुछ कुछ बुरा करूँगा, बुरा बोलूँगा, एनवीनेस करूँगा। तो ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है जीवन में। स्पेशली भक्ति में तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी से। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो क्या करें हम? उसको एनकरेज करें, उसको प्रोत्साहित करें। हाँ? ईर्ष्या करने से तो कोई फायदा नहीं। तो हनुमान जी ने क्या कहा है यहाँ पे कि ईर्ष्या को खत्म करना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हाँ, इसलिए सिमिका को वहाँ पे खत्म कर दिया। तो हनुमान जी हमें क्या मैसेज दे रहे हैं कि कभी किसी को ईर्ष्या मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी को पुल डाउन मत करो। एक भक्त है हमारे राधेश्याम प्रभु, वो बहुत सुंदर कहते हैं। वो कहते हैं कि आप देखो अपना प्रोग्रेस, आप कितना अच्छा कर रहे हो भक्ति में। ऐसा मत देखो कि दूसरा कितना कर रहा है अच्छा। हाँ, आप खुद का प्रोग्रेस देखो कि कल मैं भगवान का नाम स्मरण, समझो एक जप माला कर रहा था, तो आज मैं कितना कर रहा हूँ, 2 जप माला कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोग्रेस है। नहीं कि कोई 2 कर रहा है तो आप उसके प्रति जलस ही करो। हाँ, अगर कोई भगवान का नाम ज़्यादा ले रहा है तो उससे ईर्ष्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भगवान की ज़्यादा सेवा कर रहा है तो ठीक है, उसको एनकरेज करो, लेकिन आप क्या करो, आप देखिए आप कितना भगवान की सेवा कर सकते हो। हाँ, यू आर नॉट हियर टू compete with anybody else but with
योर सेल्फ। तो यहाँ पे एक दूसरे से compete करके क्या मिलेगा? देखिए, मैं आपसे आगे निकल गया, लेकिन मेरे से आगे और कोई रहेगा, है ना? जैसे कि आप एक प्रमोशन लेके दूसरा, दूसरे से तीसरा, लेकिन कोई तो और आपके आगे रहता ही है हमेशा। आप कोई टॉप पोस्ट तो होने वाले हैं नहीं कभी, है ना? तो ईर्ष्या करके क्या मिलेगा? तो हनुमान जी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि थिंक ऑफ योर ओन प्रोग्रेस rather देन पुलिंग अदर्स। भक्ति में भी हनुमान जी देखिए, हनुमान जी भक्तों को जोड़ते थे, कभी तोड़ते नहीं थे। हनुमान जी ने क्या किया? सुग्रीव को राम जी से मिलाया। हाँ, सुग्रीव को राम जी का भक्त बनाया, सेवा में लगाया, राम जी की सेवा में लगाया, विभीषण को राम जी की सेवा में लगाया। तो हनुमान जी भगवान को बहुत प्रिय क्यों थे? तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हाँ, हनुमान जी कहते हैं आप मुझे लक्ष्मण से भी ज़्यादा प्रिय हो, भरत से जैसे भाई हो। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भक्तों को भगवान से जोड़ते थे, कभी तोड़ते नहीं थे। इसलिए अगर हम हनुमान जी से कुछ प्रेरणा लेनी है तो क्या है? तो लोगों को भगवान के नज़दीक लाए, लोगों को भगवान से जोड़े, हो सके उतना भगवान की सेवा करें। हाँ, जैसे हम कोई, जैसे बच्चा है वो गायब हो गया है, मिसप्लेस हो गया है, और आप बच्चे को माता पिता के पास लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माता पिता आपको बहुत आशीर्वाद देंगे, है ना? इज दैट करेक्ट और रॉन्ग? हाँ, वैसे हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान से दूर हो गए हैं। कुछ कर हमें भगवान की याद नहीं आ रही है ना? ऐसा कभी होता है कि आज हम पूरा दिन भर भगवान का नाम का स्मरण करें? ऐसा नहीं होता है ना? क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं। आप सब इंडिया में आपके कोई रिलेटिव्स है, माता पिता है, फ़ोन करते हैं उनको? रोज़ फ़ोन करते हैं ना? क्यों? क्योंकि याद आती है उनकी, है ना? परसों सब बहुत बहुत साल हो गए फिर भी याद तो रहती है। जैसे मैं भारत में, मैं इंडिया छोड़ के 22 साल हो गए, लेकिन अभी भी माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सबकी याद रहती है हमें। और हम फ़ोन भी करते हैं, याद भी करते हैं, जाते हैं तो उनसे मिलते भी हैं, उनके साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे संबंध है, हम उनको भूल नहीं गए हैं। लेकिन कोई क्या है हमारे जीवन में, भगवान को हम भूल गए, याद नहीं आती भगवान की। हाँ, अगर भगवान की याद आती तो हम क्या करते हैं? रोज भगवान के नाम का जप तो करते हैं एक बार। हाँ, है ना? कौन कौन करता है यहाँ भगवान का जप? आप करते हो, वेरी गुड। 2 3 4 5 6 रोज भगवान के नाम का जप करना बहुत जरूरी है। जो भी भगवान का नाम आप बिलीव करते हो, कोई ओम नमः शिवाय करता है, कोई राम नाम जप करता है, कोई स्वामीनारायण मंत्र करता है, कोई हरे कृष्ण महामंत्र करता है। देखिए, भगवान तो एक ही है, उसके नाम अलग है। भगवान एक ही है, जैसे सूर्य एक ही है, लेकिन सूर्य का नाम इंग्लिश में क्या है? सूर्य का नाम सन कहते हैं, संस्कृत में सूर्य, हिंदी में सूरज, फ्रेंच में क्या कहते हैं? वृषा, व्हाट डू यू कॉल सन इन फ्रेंच? सोले। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू वृषा। तो ऐसे बच्चे हमारे सब जर्मन फ्रेंच जानते हैं आजकल। तो ऐसे अलग अलग भाषाओं में सूर्य का क्या नाम है? अलग अलग है, लेकिन सूर्य तो एक ही है। वैसे कोई राम कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, सब एक ही है। लेकिन याद करना बहुत जरूरी है भगवान को, है ना? इसलिए आप रोज भगवान के नाम का जप करिए। हाँ, आप में जो नहीं करते हैं तो शायद आपके समय नहीं रहेगा आपके पास, आप बहुत बिजी रहेंगे, या कोई हेल्थ इश्यू रहेगा, या फैमिली सिचुएशन कुछ हो सकती है। ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के नहीं करना चाहता है, या कुछ पढ़ाई रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ करके क्या करना है? कुछ ना कुछ करके क्या करना है? जुगाड़ करना है। जुगाड़ समझते हैं? जुगाड़ याद है? कहाँ भी तो भी एडजस्ट करना है थोड़ा बहुत। हाँ, जैसे अभी कोई खास मित्र है, आप बहुत बिजी है, मित्र आए हैं घर पे, बहुत बिजी है आप, लेकिन आप क्या करते हैं? कुछ समय तो निकालना पड़ेगा, अपनी फ्रेंड आया तो। यस और नो? यस और नो? निकालते हैं, थोड़ा बहुत तो समय निकाल के देना पड़ेगा। वैसे ही क्या करना है? एडजस्टमेंट करके क्या करना है भगवान के लिए? 5 मिनट हम दे सकते हैं भगवान को? 5 मिनट दे सकते हैं जप करने के लिए? 5 7 मिनट, 10 मिनट बहुत हो गया। हाँ, तो जपमाला किसके पास है? कितने लोगों के पास जपमाला है घर पे? जपमाला के बिना भी कर सकते हैं। वैसे तो खाना है ना, आप प्लेट में भी खा सकते हैं और हाथ में भी खा सकते हैं, है ना?
लेकिन हाथ पे कितने लोग खाते हैं? आप हाथ पे खाते हैं ऐसा, क्या प्लेट लेके खाते हैं? प्लेट में, प्लेट में कितने लोग खाना खाते हैं? सब लोग खाते हैं। हाथ में कोई खाता है? नहीं। वैसे ही जपमाला जो है वो हाथ में भी कर सकते हैं, लेकिन जपमाला, जपमाला होनी जरूरी है। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसको, हाँ, इसको टूल्स कहते हैं। जैसे कि आप कोई कंप्यूटर्स में बहुत सारे टूल्स रहते हैं, वैसे ये टूल है। हर एक के पास टूल रहेगा, तो जैसे आपका फार्मिंग है, आप गार्डनिंग करते हैं तो टूल चाहिए ना। ये तो गार्डनिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वैसे ही भगवान की भक्ति में भी कुछ टूल्स चाहिए। तो उसका एक टूल है भगवत गीता, दूसरा टूल है भगवान की जपमाला। हाँ, तो जपमाला बहुत महंगी भी नहीं है एक्चुअल में, आपकी एक कॉफ़ी के प्राइस में आ जाएगी एक जपमाला। और कॉफ़ी तो क्या, अभी पी तो रात को ख़त्म, लेकिन जपमाला आपने एक बार बाय किया तो अगर आप ठीक से संभालेंगे तो लाइफ लॉन्ग टिकेगी, है ना। ये देखिए ये जपमाला, कितने लोगों ने देखी है जपमाला पहले कभी? देखी है सबने? जपमाला दो प्रकार की आती है, एक तुलसी की आती है, एक रुद्राक्ष की आती है। अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो रुद्राक्ष जपमाला, और विष्णु तत्व की आराधना करते हैं जैसे भगवान कृष्ण है, राम है, तो तुलसी माला यूज़ कर सकते हैं। तुलसी माला में कितने बीड्स रहते हैं? 108 बीड्स रहते हैं, है ना। तो ये देखो 108 बीड है इसमें, उसमें एक बीड एक्स्ट्रा रहता है, ये 109वां बीड रहता है। टोटल 109 बीड रहते हैं एक्चुअल में। लेकिन ये जो बीड है टॉप का, उसको हेड बीड कहते हैं। हाँ, इसको कृष्ण बीड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ऊपर वाला, इसके ऊपर जप नहीं करते हैं कभी। उसके आजू बाजू 108 जप रहते हैं, बीड्स रहते हैं। और जपमाला को कभी भी जमीन पे नहीं रखना चाहिए, कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए। इसके लिए एक बैग आती है, देखो ये मेरे पास बैग है, तो ये बैग में जपमाला जाती है। और ऐसे बैग में संभाल के क्यों रखते हैं? क्योंकि ये हमारे भगवान के पास जाने के लिए ये हमारा शस्त्र है, अस्त्र है, तो इसको संभाल के रखते हैं। और फिर हर एक बीड के ऊपर हम जप कैसे करते हैं? तो ये मिडल फिंगर और थंब देख रहे हैं आप, कुछ लोग ऐसे करते हैं फर्स्ट फिंगर से, लेकिन हम फर्स्ट फिंगर कभी यूज़ नहीं करते हैं। बीच का फिंगर और ये ऐसे जप करते हैं, हाँ? और ये जप करते वक्त हर एक बीड के ऊपर एक बार मंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो हम एक 2 मिनट हम सब लोग साथ में भगवान का जप कर सकते हैं आज, इज दैट ओके? हाँ, तो देखिए यहाँ पे मंत्र लिखा हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके पास जप माला है तो हर एक बीट के ऊपर एक बार जप करिए। अभी आज जाते वक्त देखिए, जिसको प्रेरणा भगवान देंगे उसके पास ही वो आने वाला है। जैसे देखिए मैं बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, आपके पास टिकट रहेगी ना तो भी आप इंडिया नहीं जा पाएंगे। टिकट होने से कोई इंडिया नहीं जाता है, वो आपके नसीब में होना चाहिए। तो कभी कभी लोग टिकट के जाते हुए भी, होते हुए भी नहीं जा सकते। एक हमारे मित्र हैं, वो भी इंडिया से आ रहे थे, उनके पास वीज़ा था, टिकट था, सब कुछ था, लेकिन एयरपोर्ट में उनको बोर्डिंग पास ही नहीं दिया। तो ऐसा भी नसीब रहता है किसी किसी का। और एक बार नहीं, 2 बार हो गया उनके साथ, एक ही हफ्ते में 2 बार उनको बोर्डिंग पास रिजेक्ट हो गया उनका। कुछ तो भी गड़बड़ हो गया उनके जीवन में। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे बोलने से आप जप करना चालू करेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अगर भगवान की प्रेरणा हो गई तो ही आप कर पाएंगे, है ना। तो चलिए हम सब जप करते हैं एक बार, हाँ, 1-2 मिनट के लिए करेंगे सब लोग। तो भगवान के नाम का जप करते हैं। अगर आप मंत्र ध्यान में रख सकते हैं तो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, हाँ। चलो आइए सब लोग करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
थैंक यू एवरीवन। सो आप जब भी समय मिले आप ये जप कर सकते हैं। आप माला के साथ कर सकते हैं, माला के बिना भी कर सकते हैं। जब भी समय मिले भगवान के नाम का स्मरण करिए, क्योंकि जीवन का अंतिम समय कभी आएगा किसी को मालूम नहीं है। हाँ, हम यंग हैं तो भी जा सकते हैं, ओल्ड है तो भी जा सकते हैं। इसलिए है वो समय भगवान के लिए यूज़ करिए। इसके साथ ही हम श्री हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हम सबको प्रेरणा दें कि हम भगवान की सेवा में लग सकें, है ना। यही प्रेरणा है और कुछ नहीं। हनुमान जी से क्या प्रेरणा लेंगे हम, तो है वो जीवन भगवान की सेवा में लगाए। जो भी आप करें वो ठीक है। आइए तो हम अभी भगवान की आरती करेंगे। तो हम भक्तों को रिक्वेस्ट करेंगे आप सब खड़े हो जाइए और